Hello dear students. In the previous video, we had studied few topics like why pulling is easier than pushing, what is basically the centripetal force, how the vehicle move on a circular track, on a level circular track, and we had also studied the motion of the vehicle on a banked road. We know that banked road means the outer part of the road is being lifted from the lower level, that is called banking of route. So in that case, in case of level road, in case of level road, what we had seen, this is a circular track, and here we have a vehicle, and this vehicle is taking a turn on the circular track. The radius of this circular track is, suppose, r is the radius. So n will act in the upward direction and mg will act in the downward direction. Centripetal force always exert in the direction opposite to the direction of radius. और यहाँ पर आपको frictional force मिली थी. With the help of that, what we had find that the safest velocity with which the safest speed with which the vehicle can take a turn is v is equal to root under mu rg. मतलब if velocity is greater than root under mu rg, then the car will skid. Then the car will skid. Skid हो जाएगी. In the same way, we had studied about banking of road, and in banking of road, we have seen, अगर हम इसका FBD डायग्राम दोबारा बनाने की कोशिश करें तो यहाँ पर हमें क्या चीज़ देखने को मिलेगी कि दिस इज़ अ सर्कुलर ट्रैक, and in that circular track we are having an angle theta, and if this angle is theta and the car is moving on this level road, so mv square upon r will act in this direction. नॉर्मल रिएक्शन की जो डायरेक्शन होगी mg हमारा डाउनवर्ड्स होगा. mg cos थीटा हमें यहाँ पर मिला था, एंड जो नॉर्मल रिएक्शन हमें देखने को मिली थी दैट इज इन दिस डायरेक्शन. इस नॉर्मल रिएक्शन के भी हम दो कंपोनेंट्स बना सकते हैं. इफ दिस एंगल इज थीटा दैट मीन्स दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा. तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर हमें एन कॉस थीटा मिल जाएगा, और इस डायरेक्शन में हमें क्या देखने को मिलेगा, एन साइन थीटा देखने को मिलेगा. यहाँ पर हमें एक फ्रिक्शनल फोर्स देखने को मिलेगी, and due to this frictional force we'll get a component of f cos theta over here, frictional force का component, और यहाँ पर हमें f sin theta नीचे की डायरेक्शन में देखने को मिलेगा. जो f है, this f is basically equal to mu into n के बराबर देखने को मिलेगा हमें. तो फ्रिक्शनल फोर्स की जगह पर हम mu into n लिख सकते हैं, and n is basically equal to mg cos theta. This derivation we have seen in our previous video. The velocity which we get in this case is root under rg tan theta plus mu upon 1 minus mu tan theta. This is the expression which we got in the banking of road, and this is the safest speed with which safest speed with which car can or vehicle can take turn. सो वाई बैंकिंग इज़ नीडेड. सबसे पहली बात तो यही है कि अगर हमें कहीं पर भी टर्न लेना है तो इट इज़ हेल्पफुल इन टर्निंग, इट प्रोवाइड अ नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स. सो फर्स्ट इज वाई बैंकिंग इज़ नेसेसरी. वाई बैंकिंग is
necessary. So first is to provide the necessary frictional force. Second is to avoid wear and tear of tires while taking turn. So these are the two benefits of banking off-road. So this was which we had already studied in the previous video. Today we are going to study about the bending of a cyclist. एक साइक्लिस्ट कैसे बेंडिंग करता है, एक साइक्लिस्ट किस तरीके से टर्न लेता है, अगर हम बात करें यहाँ पर तो सिंपल सी बात, यहाँ पर भी हमें एक सर्कुलर ट्रैक मिलेगा और इस सर्कुलर ट्रैक जो है दिस इज लेवल्ड. यहाँ पर कोई भी अगर एक साइक्लिस्ट है, यही आगे वाला टायर है हमारा, इसी तरीके से टर्न लेगा ये, जिस भी डायरेक्शन में रेडियस होती है उसी डायरेक्शन में ये क्या करता है, अपने आप को टिल्ट करता है कि नहीं. तो अगर ये यहाँ पर टर्न लेगा और यहाँ पर जो हमने एंगल एज्यूम किया है वो वर्टिकल के साथ, सपोज एंगल है हमारा थीटा, दिस एंगल इज थीटा वर्टिकल के साथ. तो यहाँ पर हमें क्या चीज़ देखने को मिलेगी कि जो भी हमारा साइक्लिस्ट है नीचे की डायरेक्शन में तो mg लगेगा एग्जैक्टली इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, mg विल एक्ट. जो यहाँ पर रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा वो देखो, कॉन्टैक्ट सरफेस इज दिस. तो सिंपल सी बात, यहाँ पर जो आपको रिएक्शन देखने को मिलेगा दैट रिएक्शन विल बी इन दिस डायरेक्शन. भाई जो भी कॉन्टैक्ट सरफेस होता है उसके हमेशा नॉर्मल आपका रिएक्शन फोर्स लगेगी. तो यहाँ पर अगर ये एंगल थीटा है तो ऑब्वियस सी बात है दिस एंगल विल ऑल्सो बी थीटा. तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा, एन कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में क्या दिखाई देगा आपको, एन साइन थीटा. और सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा जो भी आपका सर्कुलर ट्रैक होता है उसके अवे की डायरेक्शन में लग रही होती है, यानी कि दिस इज बेसिकली द रेडियस आर, है क्या नहीं. तो इतनी ही फोर्सेस यहाँ पर लग रही होंगी. वी हैव नॉट टेकन फ्रिक्शन ओवर हियर, हम यहाँ पर फ्रिक्शन अज्यूम नहीं कर रहे. तो एन साइन थीटा जो होगा दिस विल बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर हो जाएगा, एंड एन कॉस थीटा विल बी इक्वल टू एम जी. यही दो फोर्सेस हैं जिन दोनों फोर्सेस को हमें बैलेंस करना होता है. तो दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2. डिवाइडिंग 1 एंड 2 तो क्या मिल जाएगा, देखो एन साइन थीटा अपॉन एन कॉस थीटा, this will be equal to mv square upon r into mg. M will get cancel out and n will get cancel out. So tan theta will be equal to v square by rg. Theta must be equal to tan inverse v square by rg. So all these three cases, first case level road, second case banking, third case is bending of a cyclist. We had studied these three cases. All these three cases have some importance. In the first case we have taken mu only. यहाँ पर हमने mu कंसिडर किया, मतलब फ्रिक्शन इज देयर. ठीक. सेकेंड केस में mu इज ऑल्सो देयर एंड बैंकिंग इज ऑल्सो देयर. ठीक है, mu एंड बैंकिंग बोथ आर प्रेजेंट. इन द थर्ड केस ओनली थीटा इज प्रेजेंट, दैट इज बैंकिंग इज प्रेजेंट. तो हमने तीनों तरीके के केसेस को डील कर लिया कि अगर सिर्फ फ्रिक्शन होगा
तो v इज इक्वल टू रूट अंडर म्यू आर जी होगा. बैंकिंग और फ्रिक्शन दोनों चीज़ें होंगी. इन दैट केस द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी विल बी v इज इक्वल टू रूट अंडर आर जी टेन थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा. और अगर सिर्फ बैंडिंग होगी, मतलब यहाँ पर भी एक तरीके से वो बैंकिंग कराने की कोशिश कर रहा है, तो इन दैट केस थीटा विल बी इक्वल टू टेन इनवर्स v स्क्वायर बाई आर जी. All these three cases are important in different ways, and we had discussed all the three cases. Now in this video we'll see few problems, because in connected motion and in the previous videos we have seen all the connected body problem without friction. But if now the friction is present, how to deal those problems? So it's very easy to deal those problems because only one force comes into play. So what is that force? Suppose here we are having a horizontal surface. This is a horizontal surface, and suppose m1 mass is connected over here and m2 is hanging. Frictional force is there, that is mu. तो अगर mu दिया हुआ है, that means friction exists over here. So how to find tension and acceleration in this case? We need to find tension and acceleration. So tension will always act in this direction, which we had already seen in the previous videos. m2g will act over here. नीचे की डायरेक्शन में m1g लगेगा, ऊपर नॉर्मल लगेगा. और अगर ये हमने मोशन इस डायरेक्शन में माना है, तो ऑब्वियस सी बात है ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स विल एक्ट इन दिस डायरेक्शन. अब यहाँ पर जो हमारी इक्वेशन बनेगी, वो इक्वेशन देखो कैसे बन जाएगी. अब आपको फ्री करना है दोनों ही ब्लॉक्स को. तो अगर मैं सबसे पहले m1 वाले ब्लॉक को अगर मैं यहाँ पर फ्री करूँ, तो m1 वाले ब्लॉक को हम किस तरीके से फ्री कर सकते हैं, देखिएगा. दीज फोर्सेस आर एक्टिंग, यानी कि T must be greater than frictional force, that's why it is moving in the right direction. And in the second case the equation will be equation will be equation will be m2g minus t is equal to m2a. अब यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इंटू एन, एंड एन इज बेसिकली इक्वल टू m1g. तो अगर मैं t माइनस म्यू m1g इज इक्वल टू m1a लिख दूँ, और यहाँ पर जो हमारी सेकंड इक्वेशन है, इन दैट केस m2g माइनस टी इज इक्वल टू m2a, दोनों को ऐड करेंगे तो t और t कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ पर एक्सप्रेशन क्या मिलेगा, m2g माइनस म्यू इंटू m1g इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू a. सो a विल बी इक्वल टू m2 माइनस म्यू m1 इंटू g डिवाइड बाई m1 प्लस m2. दिस विल बी द एक्सेलरेशन. अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ऊपर सिर्फ m2g का एक्सप्रेशन मिलता. अब यहीं पर अगर टेंशन निकालने की कोशिश करें, तो मैंने सेकंड इक्वेशन को डील किया, तो m2g माइनस टी इज इक्वल टू m2a, और a की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, a की जगह पर m2 माइनस म्यू m1 g अपॉन m1 प्लस m2. सो t विल बी इक्वल टू, t को एक साइड रखिए, दिस विल बी m2g माइनस m2, ये होल स्क्वायर है, होल ब्रैकेट, m2 माइनस म्यू m1g अपॉन m1 plus m2. So t will be equal to m1 प्लस m2 से इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, m2g माइनस ये क्या हो जाएगा, देखो दिस विल बी m2 स्क्वायर माइनस m1 m2 म्यू जी अपॉन m1 प्लस m2. ऐसे ही लिखना पड़ेगा. इसी एक्सप्रेशन को थोड़ा आगे सॉल्व करेंगे, तो t विल बी इक्वल टू
m1 m2g प्लस m2 स्क्वायर जी, ऐसा ही एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा, माइनस m2 स्क्वायर जी m2 स्क्वायर जी प्लस म्यू इंटू m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2। देखो m2 स्क्वायर से m2 स्क्वायर वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, दिस विल बी m1 m2g कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस म्यू अपॉन m1 प्लस m2। सो दिस विल बी द टेंशन जो एक्ट हो रही होगी। यहीं पर अगर दूसरे प्रॉब्लम की बात करें, सेकंड प्रॉब्लम, तो सपोज एक ब्लॉक है विच इज स्लाइडिंग इन दिस डायरेक्शन, तो हमसे किसी ने इसका एक्सेलरेशन पूछ लिया, फाइंड एक्सेलरेशन। क्या पूछ लिया? फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। तो अगर मुझे यहाँ पर एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो एक्सेलरेशन के केस में देखो किस तरीके से फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं हम। यहाँ पर नीचे की डायरेक्शन में क्या लगेगा? फ्रिक्शन इज प्रेजेंट ओवर हियर, म्यू इज देयर, तो mg विल एक्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। इफ mg एक्ट्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो यहाँ पर कितना आएगा? mg cos थीटा। ऊपर की डायरेक्शन में कितना आएगा? नॉर्मल। और यहाँ पर आपको एक जो फोर्स मिलेगी दैट इज mg sin थीटा, ये हम बचपन से करते हुए आ रहे हैं। इस डायरेक्शन में हमें एक फ्रिक्शनल फोर्स मिलेगी, तो मुझे एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो mg sin थीटा यहाँ पर ग्रेटर होगा किससे? आपकी फ्रिक्शनल फोर्स से। दिस विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ma, और f जो है वो म्यू इंटू एन होगा, और n यहाँ पर किससे बैलेंस्ड है? mg cos थीटा से, यानी कि म्यू इंटू mg cos थीटा। तो अगर मैं यहाँ पर mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा इज इक्वल टू ma लिखता हूँ, तो कोई प्रॉब्लम? m will get cancel out, so a will be equal to g sin theta minus mu cos theta. This will be the acceleration which the body while sliding will get. सो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि अगर कहीं पर भी फ्रिक्शनल फोर्स है तो हाउ टू अप्लाई दैट फ्रिक्शनल फोर्स इन अवर connected body problems. So that's all for today. Thank you so much and God bless you all.